عدالتی حکم کے مطابق تو 48 گھنٹے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے ویسے یہ شفا اسپتال کب تک شفٹ ہو جائیں گے عمران خان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب کو صبح بخیر ہے۔ نہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں، میرے خیال میں ابھی تک تو شفٹنگ بھی نہیں ہوئی کیونکہ کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن اس میں تو ظاہر ہے عدالت کا حکم ہے اور ریاستی ادارے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ان کی شفٹنگ میں تو پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو عدالت کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے اور فوری طور پہ خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کریں۔ ہمارا جتنا حصہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ یہی ہے کہ کوئی پولیٹیکل وہاں پہ کوئی اس طرح کا تو نہ ہو جس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو، یا جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے اس کو ان کو پھر واپس جانا پڑے اس سچویشن پہ جو کل کی تاریخ میں تھی۔ تو وہاں کوئی جمگھٹا نہیں ہوگا، کوئی طرح کی پاک قیادت، کوئی کارکنانوں کو کوئی کال نہیں ہے۔ اور دوسرا، کل سے آپ نے دیکھا ہوگا مجھ سمیت ہمارے جتنے بھی لوگ کل سے میڈیا پہ گئے ہیں، کل ہم نے سپریم کورٹ کا پریس کانفرنس کی ہے، تو ہم نے جو ان کے میڈیکل رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کو سیاست کا کوئی محور نہیں بنایا، جس طرح سپریم کورٹ کا حکم تھا تو ہم اپنی طرف سے ان کے حکم کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ باقی حکومت کا کام ہے کہ وہ عدالت کا حکم امپلیمنٹ کرے۔ آپ نے محترم فاروق صاحب کی بات کی ہے، لا منسٹر صاحب کی، تو حکومت سے تو ہمیں کوئی اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی، اس لیے تو ہم عدالت گئے۔ تو ان کا ایک رائٹ ہے کہ فیصلے کے خلاف وہ نظر ثانی کریں، لیکن جب تک ان کی نظر ثانی کی اپیل منظور نہیں ہوتی، درخواست منظور نہیں ہوتی، پٹیشن منظور نہیں ہوتی، تب تک حکومت پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ فوری طور پہ اس کو منوان تسلیم کرے اور اس پہ عمل کرے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، جب ہم حکومتی نمائندوں کے بیانات سنتے ہیں، ان کے ریاکشنز دیکھتے ہیں، جیسے کہ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، تو وہ اس میں ایسا ہمیں کوئی اسٹرانگ کوئی اختلاف نظر نہیں آتا اس فیصلے سے۔ لیکن کل رات گئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جن کا تعلق آبویسلی ٹاپ ٹیئر سے ہے، وہ ایک بیان دیتے ہیں، آپ ذرا وہ بیان سنا لیتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ بھی آپ کا لے لیں گے۔ کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان فور والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت، نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے۔ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے۔ اچھا علی محمد صاحب، آپ خود بھی قانون کو سمجھتے ہیں، یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کی ہے کہ اس فیصلے کے اوپر دوبارہ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے اور اس پہ نظر ثانی کروائی جا سکتی ہے، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس بیان سے اور ایسا کچھ ہو سکتا ہے قانونی طور پر جس سے اب بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی میں کوئی ڈیلے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے خود بات کی کہ مسلم لیگ نون میں دو کیمپس نظر آ رہے ہیں، ایک تارڑ صاحب بات کریں، دوسرا جو ان کے سیاسی لوگ ہیں جن کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں، تارڑ صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، قابل آدمی ہیں، ہم نے ساتھ کام کیا ہے جب ہم حکومت میں تھے، پنجی سنگھ میں ہوا کرتے تھے، اور جو ججز کی کمیٹی ہے اس میں ہم نے کام کیا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، پڑھے لکھے قابل شخص ہیں، لیکن سیاسی آدمی اس طرح سے ہلکے کی سیاست نہیں کرتے، یا ان کا بیک گراؤنڈ لا کا ہے، ٹیکنیکل آدمی ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ میرے خیال میں جو ان کے سیاسی لوگ ہیں، آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اس کا جواب دے دیا کہ ان کی طرف اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جماعت خود بھی یہ چیزیں ماضی میں پچھلے 25-30 سالوں میں فیس کر چکی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کی کوئی گنجائش ہے کہ اب اس کے خلاف جایا جائے۔ اس نظام کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ حکومت، کہ یہ پاکستان کا سیاسی نظام واپس اپنے معتدل ٹیمپریچر پہ آئے، یہاں روٹین کی عام معمول کی سیاست شروع ہو۔ آپ جن سے میں مخاطب ہوں، آپ ہمارے وی آئی پی ہیں، آپ اور آپ کی بتاتے تھے جو عام پاکستانی ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں۔ ادھر سسٹم ریورس ہے، ادھر اس وقت عام آدمی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ابھی کراچی میں وہ بچہ جو شہید کر دیا گیا، رضا نام ہے میرے خیال میں، جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، جبران ناصر صاحب شاید ان کا جو ہے وہ کیس کر رہے ہیں، یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ آپ دونوں جو میرے ساتھی یہاں پہ ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں، اس وقت جو پاکستان میں نظام ہے، کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا نخواستہ کل کو ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو
बिलफर्ज महाल कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत है। इस निज़ाम में कुछ सिक्कत है कि हमारे बच्चों या हमारे वालिदैन बुजुर्ग बूढ़े या हमारे खानदान को एक दिन भी कफालत कर सकता है? कोई सिक्योरिटी, सब सिक्योरिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोहसिन साहब ने बात की, बात उनकी सही थी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसलिए इस वक्त इन कानूनी मोतजात में पढ़ने की बजाय, मैं समझता हूँ, कल मैंने इस पर कौमी असम्बली में बात भी की है कि खान साहब को शिफ्ट कीजिए, और ये इंतहानी इब्तिदा है। इस सिस्टम को आगे वेंटिलेटर से निकाल के वापस रिहेबिलिटेशन की तरफ जाने के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर के लेवल पे एक एंगेजमेंट शुरू हो और मुज़ाकरात के जरिए सियासी लोग इसका हल निकालें। और वैसे मैं तारड़ साहब के नॉलेज के लिए ले आऊं कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल नहीं जाया जा सकता, तो हमने तो इजाजत दी थी ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मियाँ साहब को। क्या हमें बताना पसंद करेंगे तारड़ साहब कि मियाँ साहब जब यहाँ अस्पताल से निकले, जेल से निकले, तो वो कौन से पिम्स गए थे, कौन से सरकारी अस्पताल गए थे, या पाकिस्तान से तो बाहर ही चले गए थे? प्राइवेट अस्पताल तो छोड़े, इनको तो पाकिस्तान का कोई प्राइवेट अस्पताल सूट ही उनको नहीं करता था, वो पसंद ही नहीं फरमाते थे कि अपना इलाज इधर करें। उनकी चॉइस है, देखिए मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं तो फिर उसका कम से कम आधा अपने सियासी मुखालिफ के लिए जरूर पसंद करें। नहीं पसंद करते तो अपना गिला अदालत में करें, जिसका आपको हक है। जब तक आपकी नजरसानी की अपील या पिटीशन मंजूर नहीं होती, तब तक आप कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि आप 48 घंटे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं करेंगे तो फिर आपके तौहीन अदालत लगेगी। चलें, लेट्स सी। अली मोहम्मद साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे तज्ज़िये ये भी हो रहे हैं कि अदालत के इस फैसले के बाद जो नेक्स्ट समाअत होगी फिर दोबारा से वो अडियाला ही शिफ्ट होंगे, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि अब यहाँ से मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। इस पर मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि नेशनल हुकूमत की बहुत बातें हो रही हैं, कौमी हुकूमत बनाया जाए। एक सवाल का ज़रा जवाब दे दीजिएगा। फैसल आफरीदी साहब ने, सुहेल आफरीदी साहब ने ये गालिबन बात की थी टेलीविज़न इंटरव्यू में देते हुए कि अगर बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती है तो 27 सितंबर की जो कॉल है मार्च की, वो वापस ले सकते हैं। तो आप लोग इस बात पर गौर करेंगे, नज़रसानी करेंगे अब इस अदालती रिलीफ के बाद? खान साहब हमें कहा करते हैं कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, जो मशहूर एक मकूला है। अभी तो सितंबर का महीना भी शुरू नहीं हुआ, अभी 19 अगस्त को आप और मैं आपस में महवे गुफ्तगू हैं, तो उस एहतजाज की तारीख को अभी 1 महीना और तकरीबन 10 दिन कम वेश मौजूद। खान साहब शिफ्ट हो जाएं और उनसे मुलाकात हो जाए उनकी फैमिली की, डॉक्टर्स की, तो मेरे ख्याल में फिर उस पर बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त मेरी तरफ से ये कहना है कि हम एहतजाज का मौक़िफ़ कर देंगे, ये मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा आगे जाने वाली बात है। पहले खान साहब को शिफ्ट हो लेने दें और वो अल्लाह करे वो खैरियत से इधर आएँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब वापस जाने का टाइम नहीं, आगे बढ़ने का टाइम है। इस पूरे निज़ाम को मियाँ साहब की जमात को भी सोचना चाहिए कि उनके जो एलाइज हैं, पीपल्स पार्टी या उनके दूसरे जो एलाइज हैं, वो कल आपने उनके बयानात सुने होंगे, उनके तो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने यहाँ तक कह दिया कि अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं थी, हुकूमत को खुद कर देना चाहिए था। तो आपकी तो अपना हाउस आपके साथ, आपके अलाइज आपके साथ इस बात पे नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासत में है अली साहब, या ये आपको लगता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है ना कि उमूमन जैसे मियाँ साहब के केस में हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें उसी तरह रेप्लिकेट हों, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि खान साहब अल्लाह करे अस्पताल शिफ्ट हों, उसके बाद सियासी क़यादत की, हुकूमत और पोजीशन की जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम को वापस ट्रैक पे लाएं और खान साहब के जो गलत केसेस हैं वो ख़त्म हो और उनको इज्जत के साथ वो बनी गाला जाएं। ये मेरी अपनी सोच है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन है या, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जितना जुल्म हो चुका उस पर बस करनी चाहिए। इतना जुल्म करें जितना आप सह सकें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आके कम से कम वो नहीं करेगी जो आप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ज़ाती इंतकाम और इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुके हैं। मेरे ख्याल में उनकी सोच में सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने इसी तरह बात की थी। अली अहमद साहब, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं या आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह का कोई फैसला, या जिसे अगर हम रिलीफ कह रहे हैं, ये पीटीआई के 80 रहनुमाओं के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है, शाह महमूद कुरैशी के लिए, यास्मीन राशिद साहिबा के लिए, उमर चीमा साहब के लिए? देखिए, बतौर वकील मैं कहूँगा हम हमेशा पुरुमीद रहते हैं और अपने क्लाइंट्स को उम्मीद देते हैं। बतौर सियासी कारकुन मैंने हमेशा ये सीखा है कि इमरान खान साहब ने हमें हमेशा ये सिखाया है
हमारी तो आधी उम्र उनके साथ गुजर गई है। हमें तो कहते हैं कि लीडर वो होता है जिसको देख के आपको उम्मीद पैदा हो। अगर आपको देख के कुछ शख्स ना उम्मीद होता है तो फिर आप कुछ और कर लें, सियासत ना करें। तो मैं पुर उम्मीद हूँ, लेकिन अभी इस पे मैं कुछ स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। मेरे ख्याल में पहले खान साहब को अस्पताल शिफ्ट हो लेने दें, बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह ट्रैक पे आ जाएंगी। और इस निज़ाम को भी इमरान खान की ज़रूरत है। और अगर मियाँ साहब इस चीज़ को समझते हैं तो उनको इसका एहसास होगा कि इतना अपने मुखालिफ को दीवार से ना लगाएं कि फिर आपको भी सांस लेने की जगह ना मिले। हमेशा ये चाइनीज़ एक मकूला है, वॉन जू की आर्ट ऑफ वॉर में ये है कि आप अगर खुद जिंदा रहना चाहते हैं, ये मैं सिर्फ एक मकूला बता रहा हूँ, तो आप अपने मुखालिफ को भी सांस लेने दें। मतलब ये है कि लिव एंड लेट लिव। तो पाकिस्तानी सियासत की जरूरत है कि इस वक्त सियासी फोर्सेज जो हैं आपस में एंगेज करें, बजाय इसके कि अब मजीद एक दूसरे का गला घोंटें, क्योंकि इस निज़ाम का गला घोंटा जा रहा है। और अली साहब, ये जो रिएक्शन आया आप एंटिसिपेट करें, पहली बात तो ये आप अपना रिएक्शन बताइएगा जब आपको इस ऑर्डर के अदालती हुक्म के बारे में पता चला, एक्सपेक्टेड था या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और दूसरा, जो हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया है, मिक्स तो है, बट आपको लगता है कि वहाँ पे क्या हैरानी है, या आपको लगता है कि उन्हें आइडिया था कि इस किस्म का फैसला आ सकता है? जैसे कि कुछ वुज़रा ये बात भी कर रहे हैं, वुज़रा नहीं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। जब एक बहुत अरसे तक एक चीज ना हो रही हो, और आप नाउमीद तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कोई रोशनी नजर ना आ रही हो, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान ने ये बात की तो मैंने बहुत गौर से सुनी। और उस वक्त सबको बहुत एक खुशगवार जो है वो एक एहसास हुआ कि खान साहब जो हैं वो जेल से निकल के अस्पताल आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सेहत का ख्याल रखा जाएगा। मेरे ख्याल में जब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से रिपोर्ट जमा हो गई हेल्थ की, ये दो एक दिन पहले, उसके बाद शायद हुकूमती साइड को भी अंदाजा हो गया था, क्योंकि अब इस रिपोर्ट की मौजूदगी में, क्योंकि हुकूमत ने खुद दी है, उसकी मौजूदगी में अदालत ने खान साहब को लाजमन इस चीज़ का नोटिस लेना था कि उनकी हेल्थ पे कोई रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ PTI के लीडर तो नहीं है ना, साबिक वजीर आजम है, एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, साबिक वजीर आजम की एक इम्पोर्टेंस तो होती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई और रास्ता है नहीं इसको इम्प्लीमेंट करने के अलावा। बाकी उन्हें पीने से पीने करनी है, वो होता रहता है, वो करें, आप जमा करें, अदालत मुनासिब समझेगी तो उसको लगा लेगी। फिलहाल आपके पास एक ही रास्ता है, अडयाला जाएं, इज्जत से इमरान खान साहब को बहुत एहतराम से और सिक्योर तरीके से अस्पताल शिफ्ट करें, और कोशिश करें कि जितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अदालत इस चीज़ में किसी किस्म की लीतो लाल को बर्दाश्त करेगी। राइट। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका, और उनका आपने सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं। लेट्स सी कि अब जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी वज़ीर हैं, वज़ीर कानून हैं, तो वो अब इस मामले को लेके अदालत जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियली होप एंड प्रे कि मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो और चीज़ें जो हैं वो मामूल की सियासत हमें देखने को मिले।